હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? ન્યૂ વિઝન ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન એટલે કે અનોખો માનવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેમાં અગાઉના વિડીયોમાં ઈસાથા નેપોલિયન વિશેની વાત કરવામાં આવેલી હતી. ત્યાર પછી સચ્ચા દાન, તેમાં આપણે बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए. गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેને કાનમાંથી રત્નજડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી લીધી. ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं. नीलामी એટલે કે બોલી લગાકર બેચના. શું થાય છે નીલામી એટલે? બોલી લગાકર બેચના. કૌમુદી કંઈ ઉત્તર આપે એ પહેલાં જ કોઈએ કહ્યું, આના પિતા તો અહીં જ છે ને? માનપત્રોની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તમને મદદ કરી રહ્યા છે. अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी. गहना એટલે કે ઘરેણાં. હવે ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું, તને એક તો ખબર હશે ને કે આ ઘરેણાં આપી દીધા પછી તું ફરીથી નવા ઘરેણાં નહીં બનાવી શકે. कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली. गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा दिया कि तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. કે કૌમુદીએ આ શરત મક્કમતાપૂર્વક સ્વીકારી લીધી. ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું કે तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. તારા આ ઘરેણાં કરતાં તારો ત્યાગ જ ખરું ઘરેણું છે. તુમ્હારે એટલે કે તારા, ઇન એટલે કે આ, આભૂષણો એટલે કે ઘરેણાં, કી અપેક્ષા એટલે કે કરતાં તારો ત્યાગ જ સચ્ચી આભૂષણ હે ખરું ઘરેણું છે. सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है. સાચે જ દેશ પ્રેમથી बढ़कर એટલે કે ચડિયાતું, કુછ નહીં એટલે કે કશું નથી. કે સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું નથી. ત્યારબાદ અભ્યાસ. તો તેમાં પ્રશ્નો આપણે છે એક વખત હોમવર્કમાં આપેલા છે. પ્રશ્ન 2 કે ઉદાહરણ કે અનુસાર સંયુક્ત વર્ણ से बने दो शब्द लिखिए એટલે કે સમાન કે જે શબ્દ આપને આપેલો છે દ ખોડો પ્લસ ઘ બરાબર દ્વ બને છે. તો એવી રીતે શબ્દ શું બને છે? તો કે શુદ્ધ. તો એવા આપણે બે શબ્દ છે
એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેનથી લખવાના છે. તો હું અહીં તમને સમજાવતી જાઉં છું અને અભ્યાસ કરાવું છું, તે સાથે તમારે લખવાના છે. તો તેના જે સ્પેસ આપેલી છે અહીંયા, ત્યાં તમે લખો બુદ્ધ અને મુગ્ધ. તેવી જ રીતે બીજા નંબરનું ત ખોડો પ્લસ ત બરાબર ત વીત છે. એવી જ રીતે બે શબ્દ પિત્ત અને ચિત્ત. નંબર 3 દ ખોડો પ્લસ મ બરાબર પદ્મ. તો દ્વમ છે કે પદ્મ, તો તેનો શબ્દ બને છે એક જ પદ્મ. નંબર 4 દ ખોડો પ્લસ વ બરાબર દ્વ. તો વિદ્વાન શબ્દ આપેલો છે, તેવી જ રીતે આપણે સંયુક્ત વર્ણના બે શબ્દ બનાવવાના છે. તો તેનો પણ એક જ શબ્દ બને છે વિદ્વાન. નંબર 5 હ ખોડો પ્લસ મ બરાબર હૈ, એટલે કે બ્રહ્મ. તો તેમાં બાજુના સ્પેસ આપેલી છે, તેમાં લખો બ્રહ્મા અને બ્રાહ્મણ. કે પ્રશ્ન 3 છે કે નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા કીજીએ કે મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશ પ્રેમ. તો તમે તમારા મિત્ર વર્તુળમાં, મિત્ર સર્કલમાં તમે તેની ચર્ચા 3 પ્રશ્ન છે તેની કરજો અને તૈયારી પણ સાથે કરજો. प्रश्न 4 नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए. तो પહેલું આપ્યું છે ધર્મ, એટલે સામે આપણે વિશેષણ શબ્દ આપેલો છે ધાર્મિક. તો તેમનું વાક્ય બને છે મેરે પાપા હંમેશા ધાર્મિક કાર્ય કરતે રહેતે हैं. બીજું આપ્યું છે રંગ, તો રંગીન, मैं रंगीन कपड़े पसंद करती हूँ. नंबर 3 लोभ, तो लोभी, लोभी व्यक्ति से कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए. नंबर 4 भारत, तो भारतीय, हम भारत देश में रहने वाले भारतीय हैं. नंबर 5 चमक, तो चमकीला, सोना चमकीला होता है. नंबर 6 शक्ति, तो शक्तिमान, ईश्वर सभी काम करने में शक्तिमान है. नंबर 7 गुण, तो गुणवती, रेखा गुणवती लड़की है. नंबर 8 बल, तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे. दया, तो दयावान, मेरी माता बहुत ही दयावान और गुणवान है. नंबर 10 दर्शन, तो दर्शनीय, गुजरात में बहुत से दर्शनीय स्थान है. प्रश्न नंबर 5 उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए. तो आपने उदाहरण आपेलू है पुत्र, तो पुत्री. तो तेवी ज रीते विद्यार्थी मित्रों मेढक आपेलू है, तो तेमां सामे लखो मेढकी. तरुण, तो तरुणी, कुमार, तो कुमारी, देव, तो देवी, हिरण, तो हिरणी. नीचे उदाहरण आपने आपेलू है साप, तो सापीन, तो कुम्हार, तो लखो एमा कुम्हारीन. नाग, तो नागिन, बाघ, तो बाघीन, धोबी, तो धोबीन. धोबी है त्यां दीर्घ आपने आपेलू है धोबी, तो एमां आपणे हस्व कर नाखवानुं अने धोबीन लखवानुं छे. ग्वाला, तो ग्वालीन, तेमां पण हस्व आवशे ग्वालीन. मोर, तो मोरनी, शेर, तो शेरनी, डॉक्टर, तो डॉक्टरनी, जादूगर, तो जादूगरीन गरनी, मास्टर, तो मास्टरनी, ऊंट, तो ऊंटनी. त्यार पछी छे प्रश्न 6 के प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कि हिरण, तो हिरणी है, तो एना वाक्य प्रयोग बनावाना है कि हिरण दौड़ रहा है. एवी ज रीते हिरणी दौड़ रही है.
पुत्र तो पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है तो इंदिरा की जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तेवी ज रीते मेढक तो मेढकी, मेढक कूद रहा है, मेढकी कूद रही है। तरुण तो तरुणी, तरुण खेल रहा है, तरुणी स्कूल जा रही है। कुमार तो कुमारी, कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार तो कुम्हारिन, कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग तो नागिन, नाग फुफका कर रहा है, नागिन फुफका कर रही है। बाघ तो बाघिन, बाघ घूम रहा है, बाघिन घूम रही है। धोबी तो धोबिन, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला गाय चरा रहा है, ग्वालिन गाय चरा रही है। तेवी ज रीते शेर तो शेरनी, शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर तो जादूगरनी, जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखाई रही है। मास्टर तो मास्टरनी, मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर तो डॉक्टरनी, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊंट तो ऊंटनी, ऊंट बल बला रहा है, ऊंटनी बल बला रही है। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। के विद्यार्थी मित्रों, आपने वार्ता छे એ સાંભળવી વધારે ગમતી હોય છે, તો અહીં તમને હું એક આ ચિત્ર ઉપરથી વાર્તા કહું તો વાર્તાનું શીર્ષક છે સચે મિત્ર। તો ચિત્રમાં તમે જુઓ છો 1, 2, 3, 4 ને 5, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું ને પાંચમું। एक जंगल था, जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। वह जंगल में एक तालाब था, तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ 4 मित्र रहते थे। कि एक जंगल हतुं, जंगल में वधारे पशु पक्षीओ रहता हता। ते जंगल में एक तळाव हतुं। तालाब के किनारे, तळावना किनारे कागड़ो, हरण अने उंदर तथा काचबो 4 मित्र रहता हता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। एक दिवस जंगल में एक शिकारी आव्यो। उसने पशुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। तेमने पशुओं ने पकड़वा माटे जाली छे ही नाखी के पायथरी। उसके जाल में हिरण फंस गया। ते जाली में हिरण फंसाई गયું। कुछ देर बाद वहाँ उसका मित्र कौवा आया। थोड़ी देर बाद ત્યાર પછી થોડીક વાર તેમનો મિત્ર કાગડો આવ્યો। हिरण को जाल में फंसा देखकर कौवा ने हिरण से कहा, मित्र तुम चिंता मत करो। हरणे जाल में फंसाईने जोई तो कागड़ाए हरणने कह્યું, मित्र दोस्त तमे चिंता न करो, मैं तुम्हें जाल से मुक्त करूँगा। हूँ तमने जाळीथी मुक्त करीश। कौवा उड़ता हुआ चूहे के पास गया। कागड़ो उड़ीने उंदर पासे गयो। चूहे को कहा, उंदर ने कह્યું, चूहा भाई जल्दी चलो। उंदर भाई जल्दी चालो। हिरण जाल में फंसा हुआ है, हरण जाली में फंसाई गયું છે। हिरण भाई को जाल से तुम ही मुक्त कर सकते हो। के हरण भाई ने तमे जाली मांथी मुक्त करी सको छो। चूहा और कौवा जल्द ही हिरण के पास पहुँच गए। उंदर अने कागड़ा भाई जल्दी थी हिरण पासे एटले के हरण पासे पहुँची गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल को काट डाला।
કે ઉંદરને ધીરે ધીરે झाड़ीने काफी नाखी। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देख लिया। कागड़ा भाईए दूर थी शिकारी ने आवता जोई लीधा। उसने हिरण को सावधान कर दिया। तेमने हरण ने सावधान कर दीधु। हिरण तुरंत ही झाड़ से निकल कर भाग गया। हरण तरत ज झाड़मांथी फसायेलुं हतुं ते बहार निकळीने तरत त्यांथी भागी छूट्युं। चूहा पासे की झाड़ी में छिप गया। उंदर भाई झाड़ी में छुपाई गया। तब तक कछुआ भी वहाँ पहुँच गया। त्यारे ज काचबाभाई छे त्यां पहुँची गया। शिकारी ने देखा कि हिरण तो झाड़ की तोड़कर भाग गया है। शिकारी ने जोयुं तो हरण तो झाड़ी मांथी फसायेलुं हतुं ते झाड़ने तोड़ीने छूटी गयुं छे, त्यांथी भागीने जतुं रह्युं छे। तभी उसकी नज़र कछुओं पर पड़ी। त्यारे तेमनी नज़र काचबाभाई पर पड़ी। उसने कछुओं को पकड़कर अपनी थैली में डालने का सोचा। तभी कछुआ तालाब के पानी में चला गया। जेव पोते पोतानी नज़र में काचबाभाई ने जोवे छे तरत ज कागड़ाभाई छे तेमने पकड़ीने पोतानी थैली में नाखी दे छे तो तरत ज काचबाभाई विचारे छे अने तरत ज तराव में चाल्या जाय छे। शिकारी हाथ मलता रह गया। शिकारी ने हाथ में कहीं मळतुं नथी। इस तरह चारों मित्रों ने अपनी दोस्ती निभाई। आ रीते चारे मित्रों पोतानी दोस्ती छे ई निभावी। तो विद्यार्थी मित्रों आजे तमारे स्वाध्यायना प्रश्नों तेमांथी तमारे 1, 2 ने 3 ते होमवर्क में लखवाना छे। त्यार पछी प्रश्न 3 के विराम चिन्हों का उपयोग करके परीक्षण फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में थी कुशल थी। के दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। तेमने युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, दूरदर्शीपणुं, अखंड साहस અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકારી કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે મેં પેરેગ્રાફ સમજાવ્યો છે તેનું અનુવાદ છે ઘરે તમે પ્રેક્ટિસ માટે અને તૈયારી માટે કરજો। અસ્તુ। આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।